start the class. So let's see what we have got today. I hope this class is live and you're able to join it. So this is live, and so let's start. So the first question here is related. This is an old CAT question, and Russian proportion question is this. So what we have to find out, we have been given certain relation between A, B, C. We have been given that A is equal to 6B equal to 12C, and then we have been given 2B equal to 9D equal to 12B. Okay, and I need to find out what exactly in these options we have an integer or not an integer. So simply see A, 6 and 12, the LCM will be how much? LCM will be 12 for them. So what I can do, I will divide all of them with 12. So I will write A by 12 equal to B by 2 equal to C by 1. If I assume them to be K, again find out A is 12K, B is 2K, and C is 1K. So A is 2, B is 2, C comes out to be 12 is 2, 2 is 2, 1. Similarly, you see here 2, 9, and 12. So the LCM will be how much? 9 into 2 into, because यहाँ पे 3 into 4 है, एक जगह स्क्वायर है, एक जगह 3 into 4 है, and एक जगह 2 है. LCM is simply 3 square into 4. So 36 is the LCM. For this, I will divide for the relation. I will divide by 30. So I will get B18 equal to D by 4 equal to E by 3. Okay, so B is to D is to E. I am getting E is 18 is to 4 is to 3. Now my way is to write all of them in a particular similar fashion. So I need to find out A is to B is to C is to D is to E. So you can see that D यहाँ पे is 2 and यहाँ पे is 18. So I need to multiply this by 9 so that I can get B in terms of 18. So the first relation में I will just multiply by, यहाँ पे just see A is to B is to C was 12 to just to balance it out. I will multiply by 9. So 108. So 18 is to 9, and B is to D is to 18 is to 4 is to 3. So I can see 18 here. So I can simply write 1. A is to B is to C is to D is to E is nothing but 108 is to 18 is to 9 is to 4 is to 3. So what exactly I'm getting here is A is 108. Suppose I assume it K dash, B is 18K dash, C is 9K dash, D is 4K dash, and E is 3K dash. So A by 27. So C here 27. So if we will put here, so what will happen? 4 sevens are. So I will get 4K dash and B by E. So B by E will give me 6. 6. The first one gives me integer. First option. Just check the second option. A by 36 gives me 3K dash and C by E. C is 9K, E is 3K. So again, I'm getting an integer. For third option, A by 12. So 108K divided by 12 is 9K dash. And BD by 18. So B 18K dash, D 4K dash divided by 18. So it will give us how much? 4K dash square. Square. A by 6. So 18. C by D. C is 9. D is 4. 9 by 4 I'm getting. So for last option, I'm not getting as integer. So this will be my answer. So for this, my answer is option 4, because the question asked which of the following number is not an integer. Option 4 is the answer. The concept which we have applied is to write this in a continued proportion.
So we balanced it out in terms of B. First, we took an LCM and found out a ratio of A is to B is to C. Same thing with B is to D is to E. And then we eliminated, we try to keep it in a continued proportion by balancing out B in both as the same 18. And finally, checking with the options. Let's go to the next question. So just let me shift it a bit. So it's a very, uh, a lot of text is there. Let me explain this in a particularly very simple manner. It's a question. It's a very interesting question, in fact. So four teams are there. So I just write the initial of the teams: G, R, H, and S. These are the team. So in the start of the tournament, they have some points. Take some points. I don't know the point. This is the first round happens. First round में what happens is which loses. So Gerald loses all the matches. So I just put a cross here means he loses all the matches. ठीक है? And he has to give all. I mean जिसके पास जितना भी पॉइंट है सपोज आर के पास वाई है तो ही विल गिव हिम वाई पॉइंट एच के पास जेड है तो विल गिव हिम जेड पॉइंट एंड एस के पास मान लो k है तो we will give him k point and his point, suppose his point was x, so it will become x minus 2y minus 2z minus 2k. So this is the concept which is given. Whoever loses gives the other team points equal to the point they have that moment. Now what's is saying is that preliminarily at the start of the tournament they have some point start में they have particularly some point, I don't know about it. Okay. And after that, in the first round, G loses and gives his points to other teams. Second round, S loses and gives his point to other teams. And the third round, H loses. So I'm just writing first case on G, second case on S, साथ H. These are the loser teams, and they distribute their points to other teams. After that, each team has equal points. So after that, what happens? They have the equal point. Now, because what is happening? Ki every team is like getting doubling his points. Suppose यहाँ से start हुआ तो एक बार double होगा फिर दो बार double होगा या तीन बार double होगा, like that things are going on. So we just assume, we are not assuming it x. I am trying to assume it 4x 4x 4x. Reason being, you will understand why I'm assuming it 4x 4x 4x, just to make sure that I do not end with much of a fractional values. Why? This will be clear from the approach. So what's happening third round is that H has lost. So when H will lose, he will give all its point to other teams. I mean G, R and S will double its point. मतलब after doubling, G and R and S has point as 4x. So in third round, what would have happened? Key, their point would have been half of this, 2x, 2x and 2x, and the point which is now to in the after the equalization, the point which has flown to them, that point lies with h before he loses. तो यहाँ पे 4x है और थर्ड राउंड में चूंकि वो लूज करेगा 2x 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 सबको देगा. थर्ड राउंड में हारने के पहले उसके पास क्या पॉइंट था? थर्ड राउंड में हारने के पहले उसके पास पॉइंट्स क्या था? एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड राउंड उसके पास पॉइंट था 4x प्लस 6x, यानी कि 10x पॉइंट था उसके पास. ठीक है, because हारने के बाद what's happening is giving 2x to him, 2x to him, 2x to him, so 4x it becomes. Second round में S has lost, तो S का point after losing is 2x, but these people have not lost. Their point must have been doubled. तो double होने के पहले starting में their point will be x x and 5x, यानी इतने points होंगे. And चूंकि इतने points है इतना ही sum he will give. Who will give? तो S will give 5 6 7x, तो S का point will be 9x before losing in second round. Similar thing with G. तो what are the points to for these RHS? तो R का point होगा x by 2, इसका होगा 5x by 2 और इसका होगा 9x by 2. Just sum up 9 5 14 15x by 2. 15x by 2 plus x, which is 17x by 2, would be point of G, because as he lost, he distributed his points to others and then they landed to this position. ठीक है, तो बिफोर द स्टार्ट मतलब
फर्स्ट राउंड में लूज करने के पहले यानी स्टार्टिंग में दे विल हैव पॉइंट्स लाइक 17x/2, x/2, 5x/2 एंड देन 9x/2। ठीक है, ये पॉइंट्स होंगे उनके। आपको पूछा है जी एंड एस का पॉइंट का रेशियो, तो जी का है जी एंड एस का पॉइंट का रेशियो जस्ट टू हैव टू सी जी इज टू एस करना है, तो 17x/2 डिवाइडेड बाय 9x/2, so x/2 try to cancel out, 7:9, 17:9 is the answer here. This will be the answer. ठीक है, I hope this is clear too. ठीक है, ठीक है. So let's move to the next question and see what exactly we have there. So यहाँ पे we have a couple of questions here. So यहाँ पे question number 8. Now we have this rupees 750 is divided to whom? To P, to Q and to R. So PQR को divide किया, if rupees 30, 20 and 10 is added to their respective sales, then the ratio of amounts becomes 10:8:9. ठीक है, now what happened कि आपने ऐड कर दिया, आपने क्या ऐड किया 30, 20 and 10, तो इसको डिवाइड किया आपने, उसके बाद P में 30 ऐड कर दिया, Q में 20 ऐड कर दिया and R में 10 ऐड कर दिया, and the ratio becomes 10, 8 and 9. So obviously the ratio becomes 10:9, the actual amount will be 10k P का, ठीक है, P plus 30 will be 10k, Q plus 20 will be 8k and then R plus 10 will be 9k. If you add all of them, 8, 9, 17, 10, 27k comes out to be P plus Q plus R, ठीक है, and plus 60. तो what you get 750 plus 60 you get, because obviously ये भी तो ऐड हुआ बाद में, 750 and 60 give me 810 and k becomes 27, 3 is at 81, so k comes as a 30 and I need to know the share of P. तो share of P निकाल लो, तो P का share P plus 30 is 10k, P plus 30 10k है, मतलब I have P plus 30 as 10k, 10 into 30 which is 300, तो P का share will be how much? 270 will be P का share. ठीक, that is the answer. ये क्वेश्चन जो है 9th, it is from simple equation. We are not taking this because simple equation we will take this. It's a good question. It's a CAT का question. We will take this in simple equation. Next question, question number 10. So एक पर्स है, पर्स में जो कॉइन्स है, पर्स में जो कॉइन्स है उसमें 1 रुपी 50 पैसा and 25 पैसा का रेशियो हैव बीन गिवन 3, 2 and 8. ठीक है, तो 3 to 8 रेशियो, इसका मतलब क्या है, 3 के होगा 1 रुपी का, 2 के होगा 50 का एंड 8 के होगा 25 पैसा का नंबर ऑफ कॉइन्स और नंबर ऑफ रुपीज. नाउ टोटल अमाउंट जो पर्स में 36 है, तो यू नीड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन. तो टोटल अमाउंट 36 है, यानी कि 3k into 100 plus 2k into 50 paisa. I'm just converting all of them in paisa. Plus 8k into 25 is equal to 3600 paisa. 100 यहाँ पे से I just want to remove, तो I will do 25 से या तो डिवाइड कर लो या फिर सिंपली 300 के है, ये 100 के है and this is 200 के, तो I'm getting 3 to 1 700 के equal to, sorry 600 के equal to 3600. तो k क्या हो जाएगा 6, k अगर 6 होगा तो 25 पैसे के कितने कॉइन होंगे 48, और अगर 48 कॉइन्स होंगे तो obviously this is the question which they have asked, so 48 coins of rupees 25, sorry पैसे 25 will be there and that's the answer. ठीक है, so let's move to the next question and find out. Anyways, which question you want me to explain again? The team one I will explain at the end, because flow में जाने से it is better and then I will take the questions which you didn't understand in the end, so it will be better. पहले बाकी कर लेते हैं then I will go again to the team वाला question. ठीक है, ठीक, तो let's move. The ratio
of number of first class and second class passenger is given. The ratio of the fare per person for the first class and second class is given. If the total amount collected from the second class passenger is rupees 78,000 more than the amount collected from first class, then find the amount collected from the first class passenger. तो इसको मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा नीचे ले जाने की और इस क्वेश्चन को यहाँ करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो है मुझे क्या कहा है, पैसेंजर्स का रेशियो दे दिया। तो सबसे पहले पैसेंजर का रेशियो लिख लेते हैं। फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास का जो पैसेंजर है उनका रेशियो है 1K एंड 30K। सपोज कर लो ये, ठीक है, ये पैसेंजर का रेशियो। ठीक है, द रेशियो ऑफ द फेयर पर पर्सन, तो फेयर पर पर्सन का रेशियो भी दिया हुआ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास में। तो फर्स्ट क्लास में अगर मान लेते हैं 4K डैश है, सेकंड क्लास में K डैश है। ठीक है, द टोटल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द सेकंड क्लास पैसेंजर, तो सेकंड क्लास पैसेंजर से टोटल अमाउंट क्या कलेक्ट होगा, 30K इंटू K डैश, ये होगा अमाउंट कलेक्टेड बिकॉज इतने हैं पैसेंजर नंबर में और इतना अमाउंट पर पैसेंजर ले रहे हैं, माइनस फ्रॉम द फर्स्ट पैसेंजर। तो फर्स्ट क्लास पैसेंजर का 1K एंड 4K डैश है, तो 1K इंटू 4K डैश इज बीइंग गिवन एज 78,000। ठीक है, तो ये 30K K डैश है, 4K K डैश है, तो 26K K डैश इज हाउ मच, 78,000। तो 26 3s, so I am getting K dash is 3,000. So what I need to find out, find the total, find the amount collected from the first class passenger. तो first class passenger से 4K K dash amount कितना है, amount 4K into K dash या 1K into 4K dash इनफैक्ट, तो 4K K dash आ रहा है, तो 4 को गुना कर दो 3,000 से, तो what you get 12,000 as the answer. This is my answer. Answer will be option B, 12,000. ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, सो लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे रमन के बारे में बात हो रही है, लेट्स सी। तो रमन जो है उसने डिस्ट्रीब्यूट किया सर्टेन चॉकलेट्स जो उसके पास है, वो उन्हें उसने, रमेश ने 3 अपने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो 3 सन को डिस्ट्रीब्यूट किया। रमेश के पास सर्टेन चॉकलेट थे एंड सन, एल्डर सन, एल्डेस्ट, सेकेंड सन एंड यंगेस्ट, ये 3 को उसने दिया है। ठीक है, तो एल्डेस्ट को he gave 4 less than half of the total number of chocolates with him। ठीक है, तो क्या हुआ, एल्डेस्ट को उसने कुछ दिया, तो उसके पास x था, तो एल्डेस्ट को उसने x बाई 2 माइनस 4 दिया। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड सन को रिमेनिंग का 3 लेस दिया, तो रिमेनिंग जो बचा उसका 1/4 लेके उसमें से 3 कम दिया। ठीक है, यंगेस्ट सन को 2 लेस देन 2/3 ऑफ द रिमेनिंग। फिर थर्ड को भी जो 2/3 ऑफ रिमेनिंग बचा उसमें से 2 कम दिया। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैज हैपेंड, ही इज लेफ्ट विद 18 चॉकलेट्स। ये हो रहा है और तुम्हें निकालना है कि उसके पास क्या था। सबसे पहले हम बैकवर्ड जाएंगे, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 18 चॉकलेट कब आ रहा है, जब रमेश ने 2/3 ऑफ रिमेनिंग दिया है, रिमेनिंग को x मान लो, उसमें से 2 घटाने के बाद यू आर गेटिंग 18, रिमेनिंग को यहाँ x मान लेते हैं, मतलब सेकंड को देने के बाद जो रिमेनिंग था वो x था, सपोज कर लेते हैं। तो 2/3x minus 2 is 18, तो my 2/3x will come as 20 and 2 times x 30। तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड को देने के पास उसके पास क्या रिमेनिंग था, 30। ठीक है, ओके सॉरी, आई एम जस्ट मेकिंग मिस्टेक हियर। तो उसने थर्ड को दिया है, उसके बाद 18 चॉकलेट वाज रिमेनिंग। तो तुम एक चीज देख लो, सॉरी, जस्ट मेड अ मिस्टेक हियर, सॉरी, लेट मी फर्स्ट रिमूव दिस लिटिल मिस्टेक। आपने तो 2/3 दिया था
लाइव क्लास में यही ये है कि if you make mistakes you can also correct it right there. तो 2/3 उसने थर्ड को उसने कितना दिया था 2/3 ऑफ रिमेनिंग सेकंड को देने के बाद सपोज कर लो सो दिस सेकंड को देने के बाद सपोज कर लो उसके बाद x बचा था तो उसने थर्ड को पर्सन को दिया 2/3x - 2 उसके पास बचा कितना होगा 1/3x + 2 बच गया होगा उसके बाद है ना 1/3x + 2 बचेगा तभी तो टोटल x होगा ना तो ये 18 है तो ये कितना आएगा 1/3x 18 - 2 यानी 16 और x आएगा 48 तो सेकंड सन को देने के बाद उसके पास 48 बचा था ठीक है तो और एल्डेस्ट को देने के बाद सपोज कर लो y बचा था उसके पास ठीक है तो एल्डेस्ट को देने के बाद अगर y बचा था तो सेकंड सन को कितना मिलेगा सेकंड सन को मिलेगा 1/4 ऑफ y - 3 लेकिन सेकंड सन को इतना मिलने के बाद भी बचेगा कितना 3/4 y + 3 बचेगा क्योंकि मैं क्या मान रहा हूँ कि उसके पास टोटल y बचा था सेकंड को देने के पहले तो जब 1/4 y - 3 वो दे रहा है तो +3 -3 कैंसिल एंड 3/4 y एंड 1/4 y y के बराबर होता है तो रिमेनिंग क्या होगा उसके पास 3/4 y + 3 और ये रिमेनिंग क्या है जब वो सेकंड को दे जाता है उसके बाद बचा तो ये 48 आ गया है हमने निकाल लिया इसको तो ये 3/4 y + 3 जो है कुछ नहीं है 48 है जो थर्ड को बांट रहा है और उसके बाद कुछ बच रहा है तो सिंपली यहाँ पे इक्वेट करो क्या इक्वेट करेंगे हम लोग 3/4 y + 3 इज इक्वल टू 48 तो क्या आएगा ये 3/4 y इज 45 यहाँ से 15 एंड y आएगा 60 अब ये क्या है y जब एल्डेस्ट को दिया तो उसके बाद उसके पास y = 60 आया था जो बचा था ठीक है एंड देन सेकेंड पर्सन को जब दिया था तो उसके बाद जो हमने निकाला था वो x मान के निकाला था तो x 48 बचा था और जब थर्ड को दिया तो उसके बाद उसको कुछ देने के बाद उसके बाद 18 बचा तो हमने बैकवर्ड निकाला है यहाँ पे अब एल्डेस्ट को उसने कितना दिया है तो एल्डेस्ट को उतने जो था उसके पास आधा चॉकलेट का -4 दिया तो एल्डेस्ट को जब हाफ चॉकलेट माइनस मतलब जितना भी चॉकलेट था मान लो n नंबर ऑफ चॉकलेट था तो n - 2 - 4 उसने एल्डेस्ट को जब दे दिया तो उसके पास बचना क्या चाहिए उसके पास n/2 + 4 बचना चाहिए ना टोटल n है मान लो तो ये जो बच रहा है और ये जो बच रहा है दोनों इक्वल होने चाहिए ना बिकॉज उसके पास 60 बचा मुझे बैकवर्ड डेटा से मिला तो n/2 + 4 comes out to be 60 here and then n/2 comes out to be 56 and n comes out to be 112 this is my answer मैंने सिंपली एक स्टेप एट अ टाइम किया है मैं कह रहा था थर्ड को जब मैंने इतना दिया है जो भी बच गया था मान लो सेकंड के बाद x बचा था मैंने वो मान लिया और मैंने बोला 2/3x - 2 थर्ड को दिया है 2/3x - 2 अगर थर्ड को दिया है तो उसके बाद भी मेरे पास 1/3x + 2 बचेगा क्योंकि मैंने माना है टोटल x बचा था ठीक है अब 1/3x + 2 18 दिया हुआ है तो x मुझे पता चल गया यानी कि थर्ड पर्सन को देने के पहले 48 चॉकलेट्स मैंने बचे हुए थे सेम वे में मैंने माना कि सेकंड को देने के पहले मैंने y था मेरे पास चॉकलेट और सेकंड को मैंने कितना दिया तो मैंने दिया सेकंड को 1/4 - 3 तो मेरे पास बच गया 3/4 y + 3 क्योंकि टोटल चॉकलेट जो बचा है उसको y मान रहे हैं और ये 3/4 y + 3 जो मुझे मिल रहा है पहले से ही 48 क्योंकि ऑब्वियसली वही डिस्ट्रीब्यूट हुआ फिर तो वो वहां से y 60 आ गया इसका मतलब है एल्डेस्ट को देने के बाद भी मेरे के पास 60 बचा अब यहाँ पे दिया हुआ है कि हाफ -4 जितना था उसका हाफ -4 एल्डेस्ट को दिया गया तो बचेगा कितना n/2 + 4 तो n/2 + 4 और जो बचा डिस्ट्रीब्यूट हुआ फिर वो इक्वल होना चाहिए तो फिर कट करो and will be 112 this is a very good question in fact and I think this strategy of calculating backward works very well with this question and और इश्यूज में जहां भी दो स्टेप्स हो तीन स्टेप्स हो आप कोशिश कीजिए बैकवर्ड क्योंकि बैकवर्ड में डेटा दिया हुआ है 18 चॉकलेट्स टीम में भी डेटा दिया हुआ था कि ऑल पॉइंट्स आर इक्वल तो यू हैव ग्रेटर लिबर्टी एंड यू विल बी एबल टू कोप अप विद द क्वेश्चन विद लेस वेरिएबल्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है तो मेरे पास है अजय बालू तो मुझे ए बी सी डी 4 लोगों के बारे में दिया गया मैंने इनिशियल यूज किया तो ये कहा गया कि अमाउंट विद अजय is
हाफ ऑफ द टोटल अमाउंट विद अदर्स। तो हाफ ऑफ द टोटल अमाउंट विद अदर्स का मतलब क्या है कि अगर अदर्स के पास टी है, ठीक है, तो अजय के पास टी बाई 2 है। ठीक, ठीक है। तो इससे क्या निकाल सकते हैं? मीन ए बाई बी प्लस सी प्लस डी इज हाफ। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है। So B plus C plus D by A is 2 by 1. This is what I'm getting. Amount with Balu is 1/4 of the total amount. Amount with Balu is 1/4 of total amount. तो मतलब Balu divided by A plus C plus D will be 1/4, यानी कि A plus C plus D divided by B will be 4 by 1. ठीक है। And the amount with Chetan is 1/5. तो अब ये क्या कहना चाह रहा है? Amount with Chetan is 1/5. तो चेतन divided by A plus B plus D will be 1/5. ठीक है। And what we will get? A plus B plus D divided by C 5 by 1. ठीक है, देख लो। अब क्या होगा देखते हैं। तो मुझे 3 इक्वेशन दिए, ये थर्ड इक्वेशन था। इसके पहले आया था A plus C plus D divided by B equal to 4 by 1, सेकेंड था। और उसके पहले आया था B plus C plus D divided by A equal to 2 by 1. कंपोनेंडो डिपेंडेंडो लगा सकते हैं। तो कंपोनेंडो लॉ क्या कहता है कि सिंपली सम इट अप, मतलब डिनोमिनेटर को भी ऊपर ले जाओ और सम करो और एज इट इज डिनोमिनेटर को छोड़ दो। तो ये भी रेशियो उसी तरह से होगा, 5 plus 1 divided by 1, तो 6 by 1 हो रहा है। मतलब ये टोटल जो है 6 हुआ तो C 1 होगा। उसी तरह यहाँ देख लो, तो यहाँ पे आएगा A plus B plus C plus D, तो 5 by 1 हो जाएगा। और यहाँ पे A plus B plus C plus D divided by A will be 3 by 1. अब इससे क्या मिल रहा है देखो। तो यहाँ पे आ रहा है कि A plus C plus B plus D, C जो है क्या है? 1/6 ऑफ टोटल है, आ रहा है ना, 1/6 ऑफ टोटल। टोटल ही हुआ ना A plus B plus C plus D। B आ रहा है 1/5 ऑफ टोटल। A आ रहा है 1/3 ऑफ टोटल। ठीक है, ठीक है, ये आ रहा है मेरा। टोटल कितना है? 240। तो मुझे टोटल से माइनस करके डी का निकालना है। तो डी विल बी 1 minus 1/6 plus 1/5 plus 1/3, माइनस करो पे 45। तो 90 ले लेते हैं, कोई इशू नहीं, यहाँ 90 होगा। तो कितना आया अल्टीमेटली? तो आई एम गेटिंग एज 26 by 90, मेकिंग सम मिस्टेक आई थिंक। तो sorry, I'm making a mistake here, sorry. Let me rewrite it. तो यहाँ पे just take LCM which is coming out to be 30. तो यहाँ होगा 30, यहाँ से माइनस कर लेंगे, 6 5 5 6 3 10। ठीक है, तो it will come as 30 minus 5 11 से 21 21 by 30। तो we are getting 9 by 30 of total D का, और टोटल दिया हुआ 240, तो 9 by 30 into 240 निकाल लो। 30 8 9 72, so I'm getting 72 as an answer। तो आंसर क्या होगा? 22 का सेकंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ये वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, P by Q is 1/3, Q by R is 2/3, R by S is 3/1, and S by T is 3/2, T by U is 1/5। ठीक है, 1/5। आपको क्या निकालना है? PQR डिवाइडेड बाई ST।
तो P into Q into R divided by STU. ओके, ठीक है. हाउ टू डू दिस? PQR. ओके ओके. सो सबसे पहले यहाँ पे आई कैन पुट, आई मीन एक तो तरीका ये है कि I can take them as different ratios and find out. तो I can assume that P अगर Q है तो Q है 3K, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है. Q अगर 2K डैश है तो R है 3K डैश, डिफरेंट रेशियो मान सकते हैं. R बराबर 3A है तो S है A, ठीक है, जस्ट टेकिंग डिफरेंट एंड डिफरेंट. S अगर 3B है तो T है 2B, एंड T अगर, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैंने सब जगह लिया, कहीं A कहीं B कहीं K के डैश, एंड लास्ट वाला क्या है 1/5. तो T अगर C है तो U है 5C, ठीक है. हमें निकालना क्या है P इंटू Q इंटू R. तो P क्या है, K मान रहे हैं, Q है 3K, R क्या मान रहे हैं, R मान रहे हैं 3A, ठीक है. इसको डिवाइड करना है STU से, S मान रहे हैं 3B, T मान रहे हैं 2B, ठीक है, एंड देन U मान रहे हैं 5C, ठीक है. तो कहीं ना कहीं मुझे Q बाई R का रिलेशन दिया हुआ है, तो R जब हम मान रहे हैं, तुम्हारा क्या मान K और A पर है, तो B को भी K और A के फॉर्म में लिखना चाहिए मेरे को. तो R जब 3 है तो S1 है, राइट. R जब 3 है तो S1 है, यहाँ पे भी Q और R है. तो R जब 3 है, S1 है, तो यू कैन सिंपली फाइंड आउट रेशियो. आई मीन लाइक देख लो, यहाँ पे R जब 3 मान रहे हैं तो S A है, ठीक है, और S जब 3B है तो T 2B है, ठीक है. तो S जब 3A होगा तो T भी 2A होगा. कैन आई से दैट, बिकॉज रेशियोज उतने ही. तो T 2A मान सकते हैं हम यहाँ पे, T को 2A मान लीजिए, ठीक है. S और S को भी हमको क्या करना पड़ेगा, वैसे फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे जब R 3K डैश है, यहाँ R 3 है तो S A है, तो R जब 3K डैश है तो R को 3 की जगह 3K डैश मारेंगे तो S क्या आएगा, K डैश आएगा. तो सिंपली यहाँ पे S को K डैश मान सकते हैं, ठीक है. K डैश ये 2A, और उसी तरह हमको T को भी एग्जिस्टिंग में चेंज करना है. तो T हमारा आ रहा है कितना, T आ रहा है C, सॉरी STU है, U 5C आ रहा है जब T C है, ठीक है. तो हम पीछे से आते हैं, पहले तो यहाँ पे से Q जब 2K डैश है, R 3K डैश है, जब 3K डैश R है तो S होगा K डैश. S जब K डैश होगा तो B होगा K डैश बाई 3. तो B जब K डैश बाई 3 होगा, 2K डैश बाई 3 T हो जाएगा. 2K डैश बाई 3 अगर T होगा, ठीक है, T जब 2K डैश बाई 3 होगा तो इट विल बी 5 इंटू 2, तो 10K डैश बाई 3 हो जाएगा, ठीक है. या K के टर्म्स में यू कैन फाइंड आउट, और K और 3 के लाइक. let me solve it again and let me find out through a continuous ratio. I think I'm just missing the point. So let me solve it with a continuous ratio. So यहाँ पे continuous ratio में इसको change कर लेते हैं. See that how to do that. तो यहाँ पे we have, नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा. तो यहाँ पे we have P by Q is 1/3, then Q by R is 2/3, R by S is 3/1, S by T is 3/2, and then T by U is 1/5. अप्लाई करते हैं वो कॉन्सेप्ट जो मैंने कल बताया था.
तो मेरा कॉन्सेप्ट था P is to Q is to R is to S is to T is to U फाइंड आउट करने के लिए we will first start with multiplying all the numerator. तो numerator क्या है 1 into 2 into 3 into 3 into 1, ये मेरा numerator है and then I will replace one numerator by one denominator. तो 3 into 2 into 3 into 3 into 1, बाकी को as it is रखा मैंने इसको। फिर फर्स्ट को जैसे रिप्लेस किया सेकंड को भी रिप्लेस करेंगे, बाकी को 3 into 3 into 1 को एज इट इज रखा है यहाँ पे। फिर थर्ड को भी रिप्लेस कर लेंगे 2 1 into 3 into 1 हो जाएगा। फिर हम फोर्थ को भी रिप्लेस कर देंगे 3 3 1 into 2, लास्ट वाला एज इट इज 1 हो जाएगा एंड देन लास्ट वाले को भी रिप्लेस कर लेंगे 3 into 3 into 1 into 2 into 5। ये हो गया मेरा कंटिन्यूअस रेशियो। अब ये कंटिन्यूअस रेशियो निकाल लो तो मेरा P is to Q is to R is to S is to T is to U क्या आता है 3 3 9 are 2 18, तो 18 है, ये है 3 3 9 3 27 into 2 54, ये क्या होगा 3 9 9 81, ये क्या होगा 27, ये क्या होगा 18 और ये क्या होगा 90। ठीक है, इस फॉर्म में आ रहा है और यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट रेशियो। तो इन सबको k मान के आराम से यू कैन फाइंड आउट। तो p into q into r है डिवाइडेड बाय s into t into u है, तो बस गुना कर लो। k मान रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, बस खाली सिंपली गुना करके देख लो 18 54 81 डिवाइडेड बाय 27 18 into 90, तो 27 2 सा 18 18 gets cancel 245। ठीक है, ये 9 9 सा 9 5 सा, तो what I'm getting 9 by 5, right, and this will be my answer। ठीक है, तो सिंपली कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमने चेंज किया। ये कॉन्सेप्ट कल मैंने डिस्कस किया था कि कैसे जब बड़ा सा सीरीज दिया हो तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कैसे चेंज करते हैं, न्यूमरेटर को गुना करके। ये पीडीएफ में भी, द पीडीएफ आई सर्कुलेटेड, उसमें भी है, यू कैन सी, हैव अ लुक कैसे करते हैं, एंड दिस इज द वे वी डू इट। इसके पहले इट वाज सिंपली कंपोनेंडो लॉ व्हिच वी हैव यूज्ड। ठीक है, यहाँ पे उसके पहले we have moved backward from the given data and then did the work assuming कि क्या हुआ होगा, एक one step at a time। इसके पहले we have seen that these were easy questions, simply we need to follow the conditions। उसके पहले टीम वाला क्वेश्चन था जिसमें I've been asked to explain once again। तो देखो इसमें एक्सप्लेन ये करना है, फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने के पहले उनके पास कुछ पॉइंट्स थे जो हमें नहीं पता है। फर्स्ट राउंड में जी, मैंने टीम्स के इनिशियल यूज किए GRHS, तो जी हारता है और अपने पॉइंट्स जो है वो बाकियों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बाकियों को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता है कि जिसके पास जितना है उसको उसका डबल कर देता है। जैसे आर के पास अगर वाई है तो ही विल गिव हिम वाई पॉइंट, एच के पास जेड है तो ही विल गिव हिम जेड पॉइंट्स, एस के पास के है तो ही विल गिव हिम के पॉइंट्स, और उसके पास उतने पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे क्योंकि वो उनको दे रहा है। ठीक है, तो टोटल पॉइंट्स रिमेन सेम इन ऑल द थ्रू आउट द टूर्नामेंट, क्योंकि सेम पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ऐसे करते करते पहले राउंड में जी हारता है, सेकंड में एस, थर्ड में एच, एंड उसके बाद सबके पॉइंट्स इक्वल हो जाते हैं। तो मैंने ये माना है कि थर्ड राउंड में हारने के बाद 4x 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 पॉइंट्स है, और थर्ड राउंड में गिवन है कि H हैज लॉस्ट ऑल इट्स मैचेस। तो H अगर सब मैचेस लूज कर रहा है तो ही विल डिस्ट्रीब्यूट हिज पॉइंट्स, एंड चूंकि ही विल डिस्ट्रीब्यूट, द अदर्स विल हैव डबल इट्स पॉइंट। मतलब अदर्स का पॉइंट जो 4x 4x और 4x दिख रहा है सर्किल में, तो इसका मतलब ये है कि ये 4x कब हुआ है, तो ये 4x तब हुआ है जब आपका ये 4x हुआ, ये 4x हुआ जब हमारे H ने हारने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद का ये पॉइंट है। तो ये 4x के पहले 2x होना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली उसको उतना ही पॉइंट देता है, मतलब उसके पॉइंट्स को डबल करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के पहले H हारने के पहले पॉइंट्स क्या होंगे, तो मैंने सिंपली बाकी जिनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उनके पॉइंट्स को हाफ कर दिया 2x 2x 2x, और जो ये 6x का डिफरेंस हुआ उसको ऐड कर दिया है H में, क्योंकि H हारा था उसके पहले के थर्ड राउंड के स्टार्ट होने के पहले H के पास वो पॉइंट्स होंगे 6x, तो 6x प्लस 4x 10x होगा, बैकवर्ड जा रहे हैं। तो हारने के बाद 4x हो गया क्योंकि उसने 6x डिस्ट्रीब्यूट किया सबको, हारने के पहले 10x होगा क्योंकि उसने 6x अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और सबके पास हाफ हाफ पॉइंट होंगे, मतलब अभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ।
सेम लॉजिक फॉलो किया, सेकेंड राउंड में एस हारा था, तो एस को हारने के पहले जो पॉइंट है वो क्या होंगे, वो निकालने के लिए मैंने ये अज्यूम किया, क्योंकि बाकी लोग जीते हैं तो उनके पॉइंट्स डबल होंगे, मतलब 2x डबल होने के बाद का पॉइंट है, ये 2x डबल होने के बाद का पॉइंट है, ये 10x डबल होने के बाद का पॉइंट है। तो सेकेंड राउंड में जीतने के पहले उनके पॉइंट x, x एंड 5x होंगे, और ये जो 5x, x और x का इजाफा हो रहा है इधर थर्ड राउंड में, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि s उनको पॉइंट्स दे रहा है और खुद लूज कर दे रहा है उन पॉइंट्स को, तो s बाकियों को 5x, x यानी 7x का पॉइंट दे रहा है, और उसके बाद उसके पास 2x बच रहा है, तो उसके पहले राउंड में उसके पास 2x प्लस 7x यानी कि 9x होगा। सिमिलर वे में मैंने जी के लिए निकाला है, तो जी जब हार रहा है तो उसके पहले राउंड्स में, मतलब बाकियों का पॉइंट्स इसका इसका इसके पॉइंट्स को डबल कर रहा होगा, तो उसके पहले जब आर एच एस जी से जीत रहे होंगे उसके पहले उनके पॉइंट्स हाफ होंगे, मैंने x/2, 5x/2 और 9x/2, एंड देन जी के पॉइंट क्या होंगे, इन सब के सम प्लस हारने के बाद जो पॉइंट बचे वो, तो हारने के बाद उसके बाद x बचा है और इन सब का सम है 15x/2। तो इस फर्स्ट राउंड के स्टार्टिंग से पहले इसके पास होगा 14x/2 प्लस x यानी 17x/2, और हमसे ये पूछा है कि फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने के पहले g एंड s के पॉइंट्स का रेशियो बताइए, which is 17:9, and that is the answer. So this is what we have today, and I think this is a good class. I think expect key questions were good. I've tried to take those questions which require certain concepts, and coming days my attempt will be to increase the difficulty level and put more varied class. And the only issue is that key in cases of ratio and others, questions are not very tough. Once you get the point, it is easy either way. Either you will struggle to get it in 2 minutes or 3 minutes, or you will get it in 1 minute by using the proper method or concept. So that's what it is. So I feel this concept would have helped you, and good night. Keep practicing. I will not take tomorrow's class because I will take a break tomorrow, and I will circulate the LRDI, RC, and other things tomorrow. Make sure that I circulate it, and then we will have a class on Friday. Most probably it will be LRDI class, and then weekend we will have some practice on ratio and proportion and LRDI. Okay, so good night, guys, and thank you for connecting to me. Keep practicing. Do it. So we dismiss today's class. Thank you so much.